بچانو الګه کینه شاته کیمرې منګړي کینه په خبره وی را پولیس والے په وام بیا کینه اخوا شي بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یار دیر افسوس خبر ہے یار یہ یار لڑکا موبائل دے لگ کینو اصحافیان دلخ کاری کینو مات ولا یہ ہمارے شاہ کیمرہ والا بند کری یار یہ نو یار کور کر میں PK84 کے MPA جناب فضل الہی صاحب MNA آصف بھائی لوکل گورنمنٹ منسٹر مینا خان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے باقی لیڈرشپ PK84 کے تمام ورکرز نوجوانوں مشرانوں تمام صحافی برادری اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا تمام سٹاف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور پشاور ریویٹلائزیشن پلان کے تحت جتنے بھی ہمارے آفیسرز کام کر رہے ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسپیشلی مینا خان کو DGPDA لوکل گورنمنٹ سیکٹری اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہزار خوانی کا فلائی اوور ہزار خوانی کے عوام کے لیے اسپیشلی اور تمام پشاور کے باسیوں کے لیے عموماً خوشی کی بات ہے میں آپ سب کو اس پروجیکٹ کی کامیابی پر انشاءاللہ تعالی مبارکباد دینے ایک دفعہ پھر آؤں گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کی انوگریشن ہوگی اور جتنے بھی ہم فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے مکمل ہزار خوانی کا یہ فلائی اوور ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پشاور یوٹیلائزیشن پلان میں تقریباً ہمارے 200 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں پشاور کو جو خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے اور پشاور نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں جانی قربانیاں بھی دی ہیں مالی قربانیاں بھی دی ہیں جو ہمارے ملکنڈ ریجن کے IDPs آئے ہیں ان کے لیے پشاور کے لوگوں نے دل کھول کر ویلکم کہا ہے جو ہمارے قبائلی اضلاع کے IDPs پشاور آئے تھے آپ سب نے مل کر ان کو خوش آمدید کہا تھا آپ نے ان کی عزت افزائی کی تھی مہمان نوازی کی تھی تو خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں خیبر پختونخوا کے جتنے بھی عوام ہیں وہ پشاور کے تمام لوگوں کے مشکور بھی ہیں اور یہ 200 ارب روپے حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے انشاءاللہ اس کے تحت جو انڈر پاسز فلائی اوورز کے علاوہ لنک روڈز ہیں تقریباً 35 لنک روڈز بنائے جائیں گے کینال پیٹرول روڈز ہیں اس میں انشاءاللہ وہ بھی بنائے جائیں گے صاف پانی کی فراہمی ہر گھر تک انشاءاللہ تعالی پہنچے گی اس میں پشاور میں لائٹنگ ہوگی ہر روڈ پر جتنی بھی ہمارے تاریں آپ دیکھتے ہیں بجلی کی تاریں وہ انشاءاللہ تعالی انڈر گراؤنڈ ہوگی اور پشاور کو ہم ایک ماڈرن سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی میرے عزیز ساتھیوں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا جو ویژن ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا کی عوام تک پہنچائے اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں آپ سب نے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہے آپ سب نے ہم عمران خان کو تیسری دفعہ ووٹ دیا ہے یہ خیبر پختونخوا میں تیسری دفعہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان صاحب کو دل سے چاہتی ہے
तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बदनाम हो। वो मुसलसल प्रोपेगंडे पहले दिन से मेरे खिलाफ कर रहे थे। जब हर प्रोपेगंडे में आपने उनको शिकस्त दी, आप सब ने हमारा साथ दिया, तो फिर एक बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है। तो मुझे तो पता था कि करप्शन कहाँ होती है, जजीरे कौन खरीदता है, फ्लैट्स कौन खरीदता है, 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की है। IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन में किसके नाम है। दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम है। जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं। जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं। ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। वही लोग गलत बयानिए बनाते हैं अपने काले चैनल्स के जरिए। वो काले चैनल्स जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना दीन बेच सकते हैं, अपनी पख्तूनवली बेच सकते हैं, उन काले चैनल्स के जरिए वो गलत बयानियां प्रोपेगंडा करते हैं। मैंने कहा कि करप्शन के सबूत लाओ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। जिसके पास भी, जिसके खिलाफ भी सबूत है आप लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। एक भी सबूत नहीं लाएं। ये इनके मुख्तलिफ प्रोपेगंडे हैं। आप लोगों ने इनके गलत प्रोपेगंडों में नहीं आना। ये सब मिले हुए हैं हमारे खिलाफ तमाम। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर करता है तो न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है जब खबरनामा होता है या खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटे की कवरेज होती है। आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। वो नानी है, नानी। सब तमाम मीडिया चैनल्स हमारे खिलाफ छोटी सी छोटी चीज को प्रोपेगंडा बनाकर बड़ा से बड़ा बनाता है। लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने एक बात की हो। मजाल है कि 12 अरब रुपए के जहाज लेने पर किसी ने बात की हो। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था, अभी 384 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक पहुंची थी। सिर्फ 3 सालों में वही पेट्रोल तकरीबन 150 नहीं 170 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन मजाल है कि मीडिया में कोई बंदा भी उस पर बात करे। हम अदालतों में जाते हैं अपने जेन्युइन इशू लेकर। वो जेन्युइन इशू तो छोड़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रमजान के महीने में रोजे की हालत में मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। यही अदालतें रात के 12 बजे खुली थी और 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत को बिरूनी साजिश के जरिए जिसका पांसा पलटा गया, यही अदालतें आलाकार बनी थी। उसमें मेरे गयूर पख्तूनों, तमाम इदारे हम ट्राई कर भी रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। अदालतों को इन्होंने मफलूज कर दिया है, मीडिया चैनल्स को इन्होंने मफलूज कर दिया है। जिस सहाफी ने हक और सच का साथ दिया, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अभी कोई हक और सच बोलने का बाकी ही नहीं रहा पाकिस्तान में। बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे नेब है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे बाकी इदारे हैं, सबको मफलूज कर दिया है। लेकिन इस हालात में अगर फर्ज करें मेरा और आपका लीडर, पाकिस्तान का लीडर, इस
उम्मत मुस्लिमा का लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियाजी आज जेल में है, तो उनको उम्मीद इन अदालतों से नहीं है, इन इदारों से नहीं है, उसको उम्मीद पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी अवाम से है कि ये मेरा इंसाफ करेगी। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं, जिस तरह की फस्तायत, चादर चार दीवाली की पामाली, हमारे औरतों को वहां सड़कों पर घसीटा जाता है, वहां औरतों की बेइज्जती की जाती है, औरतों को जेल भेज दिया जाता है, वहां हमारे पार्लियामेंटेरियन के कारोबार तबाह कर दिए, हमारे कारकुनों को झंडा उठाने की इजाजत नहीं है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लेता है तो उसको जेल भेज देते हैं और फिर जनाजे पर भी नहीं छोड़ते। वहां पर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। सिंध में मैं गया था, वहां पर हमने एक्टिविटीज की थी, तो हमारे एमपीएस एमएनएस को उठाया और उनको चित्तर मारे गए, उनको डंडे मारे गए, वो उनको दाग दाग कर दिया गया। बलूचिस्तान की भी यही हालत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आवाम निकल रही है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोटेस्ट भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जलसे भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस्लामाबाद की काल आई है, सबसे पहले सबसे ज्यादा कलीदी किरदार खैबर पख्तूनख्वा का रहा है। तो अभी इनका इरादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में उनकी लीडरशिप के खिलाफ नफरत फैलाएं। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने अपने लीडरशिप पे एतमाद रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी ताकत भी इकट्ठी कर दे, ना मुझे डरा सकते हैं, ना मुझे एक इंच पीछे हटा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर दे, मेरी जमीर की कीमत नहीं लगा सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूं। मैंने जब से होश संभाले हैं, मैंने अपने लीडर इमरान खान को देखा है। मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जब तक मेरे बदन में सांस है और खून के आखिरी कतरे तक मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रहेगा, और ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। हमें और सियासत नहीं करनी, हमने इमरान खान के अलावा किसी को तस्लीम ही नहीं करना, हमने इमरान खान के अलावा किसी को लीडर मानना ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के अलावा हमने सियासत ही नहीं करनी। हमारी पहली और आखिरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहां पर हमारा जीना है और इमरान खान के लिए हमारा मरना है। बस मेरे सबका जिगरी सबका मेरे गैरतमंद पख्तूनों, हमेशा याद रखना कि इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तमाम तरीके हमने आजमाए हैं, एक ही तरीका रहता है और वो एहतजाज है, और इंशाअल्लाह ताला उस ऑप्शन को हम जरूर आजमाएंगे। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, हौसला रखना है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी लीडरशिप आपको मायूस नहीं करेगी। इसके साथ साथ आखिर में हमारे जितने भी तरक्याती प्रोग्राम है, बजट पास हो चुका है, पेश हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पास होगा। वो अवामी बजट है। आप लोगों की उमंगों को देखकर, आप लोगों का एहसास लेकर ये बजट बनाया गया है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो फजल इलाही साहब ने कहा है हज़ार ख्वानी डिग्री कॉलेज, इंशाअल्लाह ताला वो मीना खान को मैंने बोल दिया है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरी बहनों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। अगर वो जो है ऑलरेडी हैं बजट में तो ठीक है, नहीं है तो मैंने अपनी बहनों के लिए ये ऐलान कर दिया है। मेरे रोड्स ये फजल इलाही साहब ने मुझे दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला रोड्स का भी मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आखिर में याद रखना कि 2026 और 27 का माली साल खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का साल है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।